Yes, Shobha, I am audible to you. Yes, sir. Yes, वीडियो ऑन कीजिए. सर आई जस्ट थॉट कि आप किसी का मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने मुझे ज्वाइन करने को बोला है. नहीं. आप आपने मेरा मॉक इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करने को बोला है. यस. बताइए, कोई प्रॉब्लम है? किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो इसलिए जोड़ा है. सबका पर्टिकुलर ओके. इंटरव्यू होता है ना. मिक्स नहीं होता, पर्टिकुलर सिंगल बाई सिंगल, वन बाई वन. ओके. ओके सर. जस्ट 1 minute सर. यस सर. ये प्रिपरेशन की है आपने? यस सर. आपने प्रिपरेशन की है नालको की अभी तक? सर मैंने डॉक्यूमेंट का थोड़ा ओवरव्यू लिया था, लाइक फुल्ली प्रिपेयर तो अभी नहीं किया है. उसी के रिगार्डिंग पूछना था कि मतलब कितना Yes. प्रिपेयर करना है, कहाँ से. मैं आपको बता देता हूँ 6 पॉइंट नालको इंटरव्यू के, है ना, किस तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है. इससे पहले आपने कभी इंटरव्यू दिया है? ये सब BARC का दिया है सर. ईआरसी ये अभी 24 या लास्ट ईयर? सर 23. 23. यस, पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन विल बी डिस्कस. Okay, sir. Myself, Shobha. I did my graduation from Delhi University, and during my graduation, I appeared for IIT JAM exam, in which I secured All India rank 35. After that, I get into IIT Delhi for my masters in chemistry, and during my masters, I prepared for a GATE exam in my second year. In that, I get AIR 172, which is not enough to get into any PSUs for general category. So I reappeared for the GATE exam in 23, and get an All India rank 21. After that, I just waited for some PSU to have a vacancy in chemistry branch for around 5 to 6 months, and that has not happened. So I joined Fitji Private Limited for teaching JE students, and now I appeared for NALCO interview. That is my first PSU interview. तो हैव यू अपीयर्ड गेट 24? यस या नो? No, sir. यस. आपका जो इंट्रो है वो 10 टू मास्टर्स आपको करना है. यस ना? 10 to master, then Yes. after your achievement like IIT JAM, CSIR, GATE, TIFR जो भी है, XYZ. Then after your hobby, what's your hobby? So I enjoyed watching cricket and playing cricket. Also love to play volleyball. Yes. Yes, that's one is 1 point. Yes. Name, Yes. intro, and hobbies. Yes. First of all, your name is Soba. What the meaning of your Yes. name? Sir, to embrace something, embrace the beauty of something. Your hobby is cricket. What is cricket? Describe your hobby. So, How to use it hobby in a day, week, month. sorry, sir, can you repeat that? What is cricket? How do you feel about cricket? I'm audible? So, cricket is basically a game in which we play with the bat and ball. That is basically playable in around 16 to 17 countries at international level.
What the history of cricket? Do you have any idea? When So did it start? cricket is basically started from England country. The British players started it. Yes, 16th century, yes. Yes, sir. And describe your hobby. How to use it hobby in a day, week, month. So describe in what way? I can't get this question. आप हॉबी को कैसे यूज करते हैं? Sir, like जब Yes, I'm audible. Your voice is not coming. So am I audible now? Yes, now audible. Carry on. So basically, I describe my hobby to feel better. Whenever I'm in my hometown, I used to play cricket, and whenever I'm on another place, so it is not feasible for me to play it daily, but I can watch it and feel better for myself. Yes, good. Your native place? My native place is Mandia Dampur. That is a small town in Hisar district of Haryana state. Yeah, describe your district and state. How do you feel? So Hisar is basically a bit known in Haryana for its political background. Like there are many good politicians from Hisar, uh, like Chaudhry Bhajan Lal, and he is CM of Haryana for around 3 times. So Hisar is basically a bit known for its political background. Yes, what's your favorite place in your district and state? So my favorite place is my home, that is in Mandia Dampur, and in Mandia Dampur, my favorite place is also my home. Yes, good basic point. Second point is clear. Yes. Next point is third is laboratory sections. What is lab? How do you feel about laboratory in your life? What the role of laboratory? So laboratory basically tells us to explore the things, to explore about science, chemistry. We get to learn new things from laboratory by doing experiments, that how things are actually going on in reality, how chemicals actually react, how things are made up in the laboratory. That is what we get to learn from the chemistry lab. Yes, good. Next, move on. Next part in laboratory, elemental analysis. What is elemental analysis? Elemental analysis, like also I don't know much about that. I have to read on that, but a bit is that elemental analysis. In elemental analysis, we are basically do the test for a particular element, like presence of element and all that. I have to read about that, sir. Okay, you look them, you have to study. Next is functional group. What is functional group? Functional group is functional group
like aldehyde, ketone, acid. How to detect in a lab? Which test is follow to? So I have to read for that. Okay. Yes, you look them. Next, move on. Laboratory section is analytical chemistry. Analytical chemistry is 5 part. Yes, qualitative analysis, quantitative, volumetric, gravimetry, and instrumental analysis. Can you explain one by one? सर एक्चुअली मैंने मतलब इसीलिए आपको कांटेक्ट किया था कि मैं थोड़ा मतलब पूछ पाऊं कि मुझे किस किस रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना है केमिस्ट्री में, तो मेरी केमिस्ट्री ये वाली अभी थोड़ी प्रिपेयर नहीं है। यस, वो मैं एक आइडिया ले रहा था कि किस तरह से आपको करना है। अभी आप फर्स्ट टाइम है, तो इस तरह से ये रहेगा बेसिक, है ना। लेबोरेटरी सेक्शन में इस तरह से आप स्टडी कीजिए कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैब के, प्रैक्टिकल्स टाइप के, और क्या है। तो ये लैब में, ये नालको में क्वेश्चन किए जाते हैं। जो लास्ट टाइम लोगों ने इंटरव्यू दिया था, तो उनकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको दिखा दूंगा, उससे आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट 3। ये तो हम पहले आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है, उसके बाद हम मॉक स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक से। तो थर्ड पॉइंट आपका बेसिक लैब। नेक्स्ट मूव ऑन एनालिटिकल सेक्शन। तो एनालिटिकल 5 पार्ट जो हमें डिस्कस, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है एमएससी प्रोजेक्ट। आपका एमएससी प्रोजेक्ट होगा एमएससी 4 सेमेस्टर में। तो उसका टाइटल क्या यस है, टॉपिक क्या है, टॉपिक नेम? सर, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीडोल्स। ऑक्जीन डोज। यस सर। यस। तो इसको आपको स्टडी करना है। इसका बेसिक मेन एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है इस टॉपिक की, और इसका फ्यूचर क्या है, और व्हाट द बेनिफिशियल ऑफ दिस टॉपिक इन आवर सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है। इस तरह से आपको 5 पॉइंट इसके को स्टडी करनी है। 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग ये अपना टॉपिक आपको जो है, ऑक्जिम डोज क्या है ना। ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट। 5 पॉइंट है नालको। तो नालको के बारे में आपको पढ़ना है कि ये नवरत्न कंपनी है, पीएसयू है। पीएसयू क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कितनी पीएसयू है गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में इंडिया में वर्क कर रही है? महारत्न कंपनी, नवरत्न, मिनी रत्न, कितना कितना है, रेशियो क्या है उनका, 12, 74, 125 जो भी है, उनका क्राइटेरिया क्या है, महारत्न कंपनी किस हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं, क्या होना चाहिए महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो ये पूरा होना चाहिए। और नालको का एक इंटरकनेक्टेड होता है। नालको तो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके अकॉर्डिंग जेनआरडीसी होता है, डीसीसी, जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग आता है। तो ये तो गवर्नमेंट का है, जीओआई है, लेकिन ये कंपनी है, ये ये नवरत्न कंपनी है, तो उससे इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो भी एल्युमिनियम का है और ये भी एल्युमिनियम का है। वो गवर्नमेंट का है, ये पीएसयू का है, ठीक है। तो ये तो हो गया पीएसयू के बारे में। आप उससे विकिपीडिया से, गूगल से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे वाई विल यू बिकम ए ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर इन नालको, क्योंकि ग्रेजुएट ट्रेनिंग जीटी ऑफिसर होता है, जो ओएनजीसी में होता है, वही पोस्ट होती है इसकी। व्हाट द रोल ऑफ दीज पोस्ट? इसका रोल क्या है नालको में, जो जीटी है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, इसका रोल क्या है इन नालको में, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है इसके, ये आप कर लेना, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना, बेसिक डिटेल्स। तो ये हो गए 5 पॉइंट। 6 पॉइंट है, देखो, जो बीआरसी का आपने इंटरव्यू दिया होगा, डीआरडीओ का, या जो भी इंटरव्यू होते हैं, तो अभी आप 23 में आपकी रैंक 21 रैंक थी गेट में, तो अभी डीआरडीओ के इंटरव्यू हुए थे, आपने दिया था 1 to 10 जुलाई। सर मतलब मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी उसमें। 21 रैंक पे? अच्छा, आप जनरल में है क्या? हाँ जी सर। क्यों, रिजल्ट आ गया है उसका? उसका भी रिजल्ट आ गया है, उसमें जितने लोगों ने दिया था उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, पर्टिकुलर ही है। तो ये बेसिक है। अब उसमें क्या है, जो नालको है, इसमें जो इंटरव्यू होता है वो ओएनजीसी की तरह होता है, जो रैंडम है, आपसे होल केमिस्ट्री से पूछा जाएगा क्वेश्चन।
जो अभी तक हुए, एक ही बारी नालको ने वैकेंसी निकाली है लास्ट ईयर, उससे पहले कभी नहीं आई है, ओएनजीसी की आती थी। ठीक है, इसमें होल केमिस्ट्री आपकी है, जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, तो इनसे क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे सब, जो भी बेसिक चीजें केमिस्ट्री की वही चीजें हैं। लेकिन जो बीआरसी का आपने दिया है, बीआरसी वगैरह में क्या रहता है, टॉपिक वाइज होते हैं, 5 टॉपिक, जैसे व्हाट्स योर 5 फेवरेट टॉपिक इन केमिस्ट्री, तो उससे क्वेश्चन करते हैं। तो आप दोनों तरह से तैयारी कर लेना, क्योंकि कुछ पता नहीं होता उनका। आपने डीआरडीओ में कैसे इंटरव्यू लिया था उन्होंने, टॉपिक वाइज की होल केमिस्ट्री? तो मैंने बीआरसी में दिया था, उसमें टॉपिक वाइज लिया था। टॉपिक वाइज था डीआरडीओ का, तो आपका शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, तो टॉपिक वाइज। तो इसमें आपको दो तरह से तैयारी करनी है, एक तो टॉपिक वाइज और होल केमिस्ट्री, कुछ पता नहीं होता कि वो किस तरह से पूछ लें। तो दो तरह से ये हो गया, तो ये पॉइंट हो गए 6 आपके, जिसमें आपको टॉपिक वाइज भी करना है, तो 5 टॉपिक आप अपने कर लेना फेवरेट, और होल केमिस्ट्री है उसका पूरा रिवीजन कर लेना, और क्वेश्चन सारे बेसिक रहते हैं, इसमें ओके बेसिक सर। रहते हैं, वैसा नहीं है जैसे बीआरसी डीआरडीओ में होता है, वैसा नहीं है, वहाँ डीप में पूछते हैं, यहाँ डीप नहीं। ओके सर। सर इसके लिए स्पेसिफिकली मेटलर्जी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या, या फिर उससे भी बेसिक ही आएंगे? तो बेसिक है, आप नालको के बारे में पढ़ लेना, एक एनालिटिकल सेक्शन कर लेना, वो मैंने आपको लेबोरेटरी में बता दिया है। एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है और वगैरह जो पूछते हैं मेटल्स के, तो वो सारी चीजें कुछ पढ़ लेना नालको के रिगार्डिंग। आप नालको के जो विकिपीडिया पे जाएंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल दी है नालको की। नालको और जेएनआरडीसी, इस दोनों को आप डीपली पढ़ लीजिए थोड़ा, मतलब जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम डेवलपमेंट एंड डिजाइन एंड सेंटर, जो पुणे में है एक, तो उसको और नालको को, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करके स्टडी कर लेना। बेसिक क्वेश्चन इसी के ही पूछे जाएंगे, बाकी आपका जो ओके। बेसिक इंट्रो वगैरह वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये 6 पॉइंट है, इस बेस पे आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी ओके सर। है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर लाइक कितने ड्यूरेशन का इंटरव्यू होता है नालको में? इंटरव्यू 10 to 15 मिनट्स, इससे ओके पंद्रह सर। मिनट का होगा, जैसे ओएनजीसी का होता है वैसा ही। ओके सर। तुरंत आपसे जो तो बेस, उस हाँ कहीं से कुछ भी मतलब पूछ। बेसिकली उसी 15 मिनट्स में नालको के बारे में पूछते हैं, केमिस्ट्री पूछते हैं, एंड एचआर टाइप इंटरव्यू होता है? यस, सारा चीज पूछ लें, आपका नेम क्या है, उसका बेसिक है, आपकी हॉबी होगी तो उसके बारे में पूछ लेंगे, नेटिव प्लेस उसमें पूछ लेंगे, लैब के बारे में, एमएससी प्रोजेक्ट, कुछ भी, और यही रहता है। मतलब मिनिमम 10 से 15 मिनट है, मैक्सिमम मुश्किल से 20 मिनट होगा, इससे ज्यादा नहीं, जो लोगों ने लास्ट ईयर दिया था इंटरव्यू उसके अकॉर्डिंग। एंड सर एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या कवर करना है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में मतलब एनालिटिकल क्या में क्या जो टॉपिक? एल्युमिनियम से रिलेटेड चीजें हैं और वगैरह हैं, एल्युमिनियम से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको आप स्टडी कर लीजिए, ओके सर। ज्यादा नहीं करना आपको एनालिटिकल सेक्शन में, बेसिक चीजें कर एंड लेंगे। सर एंड सर एक चीज और, लाइक उनका जो मेल आया था कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, उसके बाद भी हमें कोई स्टेप अपनी तरफ से करना होता है क्या, लाइक कोई फॉर्म वगैरह फिल करना होता है? नहीं नहीं, अभी उसके बाद हमें जस्ट हमें जस्ट इंटरव्यू के डेट पे जाके और इंटरव्यू देना होता है, दैट्स इट? हाँ, आपके पास वो आया है ना, जो वो कॉल लेटर आया होगा ना इंटरव्यू का, हाँ जी सर। कॉल लेटर आया तो उस पे एड्रेस लिखा है ना। वो तो चेक करना पड़ेगा सर, ऑनलाइन ही आया मेल पे। और हाँ, मेल लाइन पे आया है, उस पे आपका पूरा डिटेल है, डेट है और एड्रेस है, क्योंकि कैंडिडेट ने मुझे भेजा था तो मैंने चेक किया था, उस पे सारी डिटेल है। तो आप जब जाएंगे ऑफिस में तो उसके वहां पर जाके कुछ भी करते हैं तो वो उनका है, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा फिल नहीं करना पड़ता। अगर जैसे इंटरव्यू ओके पैनल सर। वहां जाके पहले अगर कोई फॉर्म भराते हैं, जैसे डीवी टाइप होता है एक फॉर्म, अटेंडेशन फॉर्म होता है, वो भरवा सकते हैं वो लोग इनिशियल स्टेज में जब आप वहाँ पहुँचते हैं, यही है एंड बाकी। सर वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं लाइक, या फिर हमें बाहर होटल वगैरह लेना होता है? अब ये आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि नहीं, उसमें अगर लिखा है तो मिलता है, नहीं तो नहीं, जैसे बीआरसी में लिखा होता है, बीआरसी में ओसीएस में मिलता है, लेकिन और किसी में अभी टेक्निकल ऑफिसर में और स्टीफन ट्रेनिंग में
नीचे लिखा हुआ था नोटिस जहाँ कि नहीं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगी फैसिलिटी, आपको आउटसाइड आउटसाइड अपना खुद का रूम वगैरह लेना पड़ेगा। आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है ओ- ना, उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसमें अगर लिखा ठीक है है कि सर। आपको फैसिलिटी मिलेगी आने जाने का कोई भी, तो मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। ओके सर। ये है। और कुछ बताइए, आप कोई और इशू? नहीं सर, अभी तो मतलब मैं 5-7 दिन प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद मॉक इंटरव्यू देना था सर। यस, आप अभी प्रिपरेशन कर लीजिए जो मैंने बताया उस हिसाब से। फिर हम ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा जो लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, वो मैं आपको भेज दूंगा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। और कुछ नालको के बारे में मैंने लिखा हुआ था, जो लास्ट ईयर ही लिखा था। अब जैसे सर आपका नालको। नालको के चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये सारी चीजें आप देख लेना विकिपीडिया से, पूरा बेसिक स्टडी कर लेना उनके प्रेजेंट में। हाँ सर, मैंने वो मतलब डॉक्यूमेंट पढ़ा था तो उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, लाइक कि मतलब ये तो बेसिक चीजें जो हमें करनी होगी, बॉक्साइट माइन कहाँ है, एलुमिना रिफाइनरी कहाँ है, और कैप्टिव पावर प्लांट कहाँ है, दीज आर बेसिक। बट उनके अलावा भी था कि किसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, और वो सब भी याद करना है कि नहीं नहीं, जो वो नहीं पूरा करना। डॉक्यूमेंट। पूरा वर्ल्ड का देखो, मैं आपको बता देता हूँ नालको का क्या रहेगा। नालको का प्रोडक्शन कितना है ना, ये चीजें इंडिया के रिलेटेड जो भी है वो बेसिक चीजें वो कर लीजिए आप बस। कितना प्रोडक्शन करता है, क्या क्या चीजें वहां से प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, ये सारी चीजें बस इंटरकनेक्टेड एल्युमिनियम के रिगार्डिंग। और यही चीज आप एनआरडीसी से कर लीजिए, जो जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन सेंटर है वो, उससे भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है और ये पीएसयू है, तो इनमें दोनों में इंटरकनेक्ट रहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है और ये पीएसयू है पब्लिक सेक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरकनेक्ट करके आप कर लेंगे। तो बेसिक चीजें कर लीजिए, बस बेसिक हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लीजिए, कब स्टार्ट हुआ था, क्या है, कौन चेयरमैन कौन डायरेक्टर है, क्या क्या उनका फंक्शन है, यूजेस कहाँ कहाँ है, बेनिफिशियल क्या है उसका, सोसाइटी में किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनके कहाँ कहाँ प्लांट लगे हुए हैं, ये चीज आप कर लीजिए। और जो लोगों ने इंटरव्यू दिए थे लास्ट ईयर, वैसे तो यहाँ से 5 सिलेक्ट थे, 2 लोगों ने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास भेजी थी, वो मैंने आपको भेज दी है, देख लेना आप कि किस तरह से क्वेश्चन उनसे ओके। पूछे थे। तो ओके उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। ओके सर। ठीक है ना? यस, बाकी और कोई क्वेश्चन है आपका, बताइए। नहीं सर, थैंक यू वेरी। ठीक है, ओके, वेलकम। 4-5 डे आप स्टडी कीजिए, उसके बाद आप मॉक ज्वाइन कर लेना, फिर हम यहाँ पे ओके। मॉक ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू।